आजकल जो इतिहास पढ़ाया जाता है स्कूल में बेकार है, यूजलेस. You know there is this great emperor Akbar in India. So he is one of the greatest emperors in India, a Mughal emperor. So Pandit Nehru wrote a Discovery of India, a book published, Discovery of India. In that book he given some 10 pages for the Akbar era. And in that he wrote 3 lines for Tulsi Das, Santa Tulsi Das. He wrote a Ramayana, and that Ramayana is read by each and every household in northern India. So he wrote that in the time of Akbar, there was a saint called Tulsi Das, and his Ramayana is read by almost every household. Now you tell me, do the people know the Akbar? No, they don't know the Akbar. They know the Tulsidas. He writes, in the time of Akbar, Tulsidas was there. Akbar has gone. Nobody knows him. And Tulsidas, every person knows in India, Tulsidas. So, whether it is Tulsidas' time and in that Akbar was staying there, or it is Akbar's time and the Tulsidas was there. So this way, the style of writing the history is completely different in India and West. These are there already, and as the world is coming together and the science is increasing, there are some changes. But the real basic changes are not. Because क्या कहेंगे, मांग जो है बहनों के तरफ से या जो those who are doing some movement for the women, I have seen the liberation for women, there are movements going on and they call it for the equal rights and other things. But they want the equal rights only in economical sphere or social sphere. They have never asked for the spiritual equality. And that is the real thing. Without that, the strength, the power of women will not increase. And the status of women will not change. Because the strength, the power lies in Atma, not in physical body. And that is why Vinoba has done the greatest service for the women while starting this Brahma Vidya Mandir for women, a spiritual center for women. That has never been asked by women that we need this kind of center. They ask for the equal pay and the choice and whatever is going on. But they never ask for this. And nobody has done this in the whole of the history of the world. So Vinoba started this Brahma Vidya Mandir. He said really they want the spiritual equality. Because the soul is neither man, neither woman. And it is with everybody. And real strength lies in the soul, not in the body. And that equality they must get. Because in India, they have no right for sannyasa, no right for brahmacharya, all this. So he told that is incorrect. The women have to do that, and men also have to do it. Together, those who understand the thing, they should do that. And women can do that through the, हम जिसको कहते हैं कि वैराग्य and ज्ञान. Man is not all
जो सामान्य ज्ञान है, इट इज़ नॉट फॉर दैट। ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य की ताकत जब स्त्रियों की प्रकट होगी तब ये काम होने वाला है। नहीं तो हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री तो बन चुकी है एक स्त्री, उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, विनोबा जी कहते थे, शंकराचार्य के समान ज्ञानी और वैराग्यवान बहनें पैदा होंगी इस देश में, तब रियल चेंज विल कम। तब तक रियल चेंज उनके स्टेटस में नहीं होता। ठीक है, उनको खाने पीने का थोड़ा सा मिलेगा, घूमने को मिला, ये है, कभी गए नहीं पड़े, कपड़े पहले, ये सब कुछ होगा। और मैं जब, मेरा इम्प्रेशन तो ये है, मैं जो यूरोप घुमा और देखा, तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ की स्त्रियाँ कोई स्वतंत्र है ज़्यादा, या उनको कोई वो होगा, पैसा ज़्यादा मिलता होगा, वो चाहे जहाँ घूम सकती है, सब कुछ दिखती है। पर आज भी वो जो है एक पुरुष के विषय वासना का स्थान बनी हुई है, उससे ज़्यादा उनका स्टेटस वहाँ भी नहीं है। हिंदुस्तान में उनकी फिजिकल हालत जो है थोड़ा ज़्यादा खराब होगी, ये संभव है। वहाँ पर फिजिकली उनको, बट स्पिरिचुअल दृष्टि से देखे जाए या थोड़ा हायर प्लेन पर देखेंगे, वहाँ भी मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती है। तो आपकी डिसेबिलिटी इन स्पिरिचुअलिटी जो है उसको दूर करना, रिमूव दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड वो जब तक ठीक नहीं होता है तब तक यू वोंट गेट इक्वल थिंग्स। इक्वल भी नहीं करना चाहिए, इक्वालिटी वगैरह में भी मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ। स्त्रियों का स्टेटस है, पुरुष का है, दोनों मिलके परिपूर्ण है। They have their special function, these people have their special function, together they have full function. ऐसा होना चाहिए। It is not that you become the क्या कहेंगे उसको, imitate the men and men imitate the women. It's not imitating. You have some special function. Purush has, men have some special function. So that will be there. तो उतना तो फर्क है, बट देयर शुड नॉट बी क्या कहिए डिस्क्रिमिनेशन इन स्पिरिचुअल वैल्यूज और द स्टेटस ऑफ वीमेन। आज हिंदुस्तान में आप कितनी भी स्वतंत्रता दो तो स्त्रियों को पुरुषों के साथ बराबरी में रहना आता ही नहीं है। इफ यू प्रोवाइड देम दे कैन नॉट लिव, बिकॉज सैकड़ों हजारों साल से जो संस्कार पड़े हैं वो ऐसे जाते नहीं है एक मिनट में, उसके बिना नहीं हो सकता है। He will explain you these things because if celibacy is not the brahmacharya, celibacy is a good life, बहुत एक पवित्र लाइफ, that is all. Brahmacharya is so the highest word in Sanskrit literature or Indian spirituality you will find is a brahmacharya. ब्रह्मचर्य है, संन्यास है, 2-3 वर्ष है, इसे टॉप मोस्ट वर्क। और आजकल हम समझाने जाते हैं तो दूसरी चीज़ तो लोग समझ लेते हैं, जो वेस्ट से सीख कर आए हुए हैं या हमारे यूनिवर्सिटी के लोग हैं, दे अंडरस्टैंड सत्य, अहिंसा, दे अंडरस्टैंड, बट ब्रह्मचर्य नहीं। तो मुझे यहाँ हॉलैंड में मैं गया, so the one person came to see me, we talked many things. He said brahmacharya is incorrect, गलत है, is wrong. Why? It is a biological need of the body. What is this biological need? क्या नया शब्द लेकर आ गए हो? एक नया शब्द इस्तेमाल करने से वो ठीक है ऐसा किसने कहा? तो ये जो कल्पनाएं हैं, ये मनुष्य एक केवल बायोलॉजिकल एनिमल नहीं है, ये उसका मन है, उसका हृदय है। यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आज जो एजुकेशन है, व्हाट इज इट? वी हैव बॉडी, वी हैव माइंड, वी हैव हार्ट, वी हैव इंटेलेक्ट, बुद्धि जिसको कहेंगे। अब हमारी शिक्षा क्या होती है? आज की शिक्षा में क्या है? We touch only intellect। और थोड़ा बहुत आजकल योगा वोगा चलता है या कुछ ड्रिल विल करवाते हैं आसन का, दैट इज फॉर बॉडी लिटिल, पर हार्ट
कुछ भी नहीं है, नथिंग। वो बिल्कुल छोड़ दिया है हमारे एजुकेशन में उसको। देयर इज नो प्लेस फॉर द हार्ट इन योर, यू डोंट इंक्रीज द क्वालिटीज ऑफ योर हार्ट इन टुडेज एजुकेशन, बट यू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर इंटेलेक्ट। एंड इंटेलेक्ट में भी कई चीज़ें हैं, उसमें जो होता है एक तर्क शास्त्र होता है, तर्क, तो तर्क करने की ताकत हमारी बढ़ जाती है, लेकिन एक स्मरण शक्ति भी होती है उसमें, स्मरण शक्ति हमारी कम हो जाती है। कि लोगों में डिवीजन नहीं होना चाहिए, लोग एक दूसरे के नज़दीक आने चाहिए, एंड दे शुड हैव अ फुल फेथ इन ईच। There is, the faith is one of the greatest thing in love. If you don't have the faith, then it is not love. ये होता है। Just he used to say us that जैसे आपके शरीर में in body you have this श्वास, breathe, श्वास, वैसा समाज में विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसके बिना प्रेम आता नहीं हमारा एक दूसरे के प्रति। अब प्रेम को कोई बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिश्चियन लोग तो कहते हैं लव इज़ गॉड, यहाँ तक है, प्रेम को वो ईश्वर समझते हैं। तो प्रेम को ईश्वर समझते हैं और वो मांसाहार करते हैं, तो ये कैसे? वो जो प्राणी है, जो जानवर है, वो प्रेम समझता है कि नहीं? जब आप उसके पास कोई चीज़ ले जाते हो, वो आपका प्रेम समझता है। कुत्ता है, बिल्ली है, आपका प्रेम समझता है। अब उसको मार कैसे सकते? तो आप उसको अगर मारते हो तो आप लव को गॉड नहीं समझते हो, उसमें भी है वो प्रेम। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा सब चीज़ों को। तो आपका जीवन शुद्धि, दो चीज़ें, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड and purification of your day-to-day life and livelihood, especially livelihood. एक वचन आता है, योर्थ शुचि सो शुचि नमृद्वारि शुचि शुचि। सफाई के लिए, for cleanliness, we use soap, we use mud and all this. It is not really cleaning agents. When your life means especially your earnings, your monetary life, if it is pure, then you are really pure in your life. It is material life, for spiritual life another thing. लेकिन जब तक आपके जीवन में से जिस अर्थ शुचिता, there is a word by Vinoba, अर्थ शुचिता, ये अगर नहीं है, लाइवलीहुड की शुचिता नहीं है, when you exploit somebody else or you deprive him of his things, then your life cannot be pure. देखो, आज भी जो है ये ज़रूरत है कि दुनिया में करुणा का राज्य होना चाहिए। 3 तरह के तरीके हैं रास्ते। एक होता है कत्ल का है ना, मार डालना। दूसरा होता है कानून, जैसे लॉ का है। और तीसरा तरीका समाज के समस्याएं हल करने के लिए होता है करुणा। तो जो मार डालना है, कत्ल का तरीका है, वो सब तरफ फेल हो चुका है, उससे कोई रास्ता निकलता नहीं, ये सब समझ लो। दूसरा तरीका है लॉ, कानून का भी हिंदुस्तान में आज तक कोई पालन नहीं होता है, और कानून से रेवोल्यूशन नहीं हो सकती है, समाज परिवर्तन नहीं है। वो केवल करुणा से ही हो सकता है, और करुणा यानी हृदय का प्रेम, जो दूसरे के लिए हमको कुछ करने की, कुछ सेवा करने की, उसके लिए कुछ त्याग करने की प्रवृत्ति है, ये करुणा में से निकलती है, और उसी से समस्या हल हो सकती है, उसी से रियल रेवोल्यूशन समाज में आ सकती है। रेवोल्यूशन इज नॉट ए चेंज ऑफ गार्ड और चेंज ऑफ किंग। दिस इज व्हाट पीपल अंडरस्टैंड, दैट ये किंग हैज चेंज, Napoleon has gone, and the other people said it is a French Revolution,
or the Russian Revolution. The Tsar has gone and Bolsheviks came there. They feel it is a revolution. Not really. After some time, that Bolsheviks, they become the king. So change. The change of the values, the change of the moral values, the social values is revolution. वो जब तक नहीं होता है, तब तक होता नहीं है। और वो करुणा से ही हो सकता है, वो विचार परिवर्तन से ही हो सकता है, वो आपको डंडे से नहीं हो सकता है। You cannot change my thoughts with the rifle. ऐसा है, not by the rifle, not by the atom bomb. You cannot change my thoughts. ऐसा हो जाता है। और क्या है, पहले समाज में, संसार में आकर्षण के विषय थोड़े थे, अब इतने हो गए हैं। पहले हमारे पास पैसा खर्च करना था, 100 रुपया मिलता था, चलता था, खाना है, कपड़ा है, थोड़ा सा और इधर उधर होगा। अब आपके पास में रोज नए गैजेट्स आ जाते हैं, तो आपको कितना भी करो तो 3 साल में तो ये बोले मॉडल पुराना हो गया, अभी नया चाहिए। तो संसार में खींचने के, आकर्षण के स्थान बहुत बढ़ गए, इसलिए अब का ज़माना और कठिन हो गया है। दूसरी बात, ये जो टेलीविज़न और जो मीडिया सब आया है, वो आपकी जो इंद्रियां हैं उनको खींचता है अपने तरफ, और अपने तरफ खींच करके आपसे पैसा निकालता है। आपको गुस्सा दिलवाएगा और पैसा लेगा, आपके चित्त में काम भावना बढ़ाएगा, सेक्स की भावना बढ़ाएगा और पैसा निकालेगा। इस तरह से हो गया है। तो दुनिया में जो आकर्षण के विषय है वो बहुत बढ़ गए, पहले बहुत थोड़े थे। अब आज जो है खाने के लिए कहते हैं भाई, एक किसी ने आइसक्रीम खाया एक थी, अब कहते हैं 300 उसकी फ्लेवर से कितने खाए, तो आपके आकर्षण के विषय बढ़ गए। आप सुबह से शाम तक एक आधा नाटक देखते थे या एक आधी कोई फिल्म देख ले, अब कैसे है, सैकड़ों चैनल्स 24 आवर्स देखते ही रहो, आपको फुर्सत कहाँ है सोचने की कुछ भी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। तो सबसे बड़ा जो है कि संसार का आकर्षण बड़ा है। जो संसार के आकर्षण से छूट सकता है वो दूसरी तरफ जाएगा, नहीं तो वो कैसे जाएगा। इसलिए पहले के ज़माने में वैराग्य की जितनी ज़रूरत थी उससे आज ज़्यादा ज़रूरत हो गई, लेकिन हम समझते नहीं हैं। और इसलिए ब्रह्मचर्य वगैरह का विषय आज पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। उसको बायोलॉजिकल नीड करके उड़ा देते हैं, दूसरी तरह से लेते हैं। ये सब है नहीं, इनह्यूमन है। अभी आप देखते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की ये है, क्या है। अब आजकल की पीढ़ी को ये तो कॉमन चीज़ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लगने लग जाता है। तो वैल्यूज बदल जाते हैं, लेकिन उससे जीवन कैसा बनेगा इसको सोचना पड़ेगा, वो हम नहीं सोचते हैं। इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि समाज में ये जो है, जिस तरह का क्या कहते हैं सेक्स एक्सप्लोजन जो हो रहा है, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। 25 साल पहले मैंने बताया कि नहीं, उस दिन मालूम नहीं, मैं गया था तो वहाँ बेल्जियम में मेरा एक भाषण हो रहा था, तो मैंने उनको कहा, द पैसिफिस्ट वो थे सब, कि हमको एटम बम का कोई डर ही नहीं है। जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको हम डरते नहीं हैं, हमको तो डर लगता है पिस्तौल का, क्योंकि गांधी जी की हत्या पिस्तौल से हुई थी, कैनेडी को बंदूक से मारा, पोप पर गोली चली थी, मार्टिन लूथर किंग को मारा। ये एटम बम ने नहीं मारा है। एटम बम का स्वरूप अलग है। इट इज अ मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, इट इज नॉट ए मीन्स ऑफ वायलेंस। बंदूक ये वायलेंस की चीज़ है, और एटम बम कैसा है, ये डिस्ट्रक्शन की बात है। डिस्ट्रक्शन हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर चाहेगा तो होगा।
चाहे वो बना लिया, इसलिए इसको हमको फर्क करना पड़ेगा। तो आप इसको नहीं डरते तो क्या कर है, वो आदमी मेरा अनुवाद करना बंद कर दिया, फिर दूसरे आदमी को खड़ा अनुवाद करना पड़ेगा। आप डरते नहीं कहते हैं, वो कांपने लग गया इससे। फिर हम डरते हैं सेक्स एक्सप्लोजन, वो हिंदुस्तान दुनिया को बर्बाद करते हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं, आपकी जो मानसिक शक्तियां हैं, वो तो ऐसे ही खत्म कर देगा। उसके लिए एटम बम की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर बैठे बैठे मर जाओगे। आपकी जो ताकत है, जो इंद्रियों की ताकत है, जो मन की ताकत है, जो शरीर की ताकत है, जब आपका विषय वासना में चले जाएंगे तो आप कैसे टिकेंगे? रह ही नहीं सकते। ये स्पीसीज जो है, ह्यूमन स्पीसीज, वो ऐसी डिटोरिएट होके खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा डर है, लेकिन किसी को उसका डर लगता ही नहीं है। हमको उसका ही डर ज्यादा है, इससे कुछ नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल क्या है? कोई बड़ा सवाल नहीं है। उससे ज्यादा ये जो सेक्स एक्सप्लोजन चारों तरफ रहता है, ये सबसे भयानक सवाल है। ये हिंदुस्तान में दुनिया के सामने है। और बात ऐसी है कि बहुत से लोग उसको इशू ही नहीं मानते। ये सबसे बड़ी कठिन है। और इसमें से मनुष्य भी डिटोरिएट होगा और हमारे युद्ध भी इसमें से निकल सकते हैं। तो जब तक संयम की बात नहीं होगी दुनिया में, तब तक ये चलेगा नहीं। और संयम पुरुष को भी रखना पड़ेगा, स्त्रियों को भी रखना पड़ेगा, दोनों को। केवल स्त्रियों को संयम रखने से काम नहीं है। हम कहेंगे स्त्रियों को तो संयम रखना चाहिए और हम चाहे जैसे रहेंगे। ये आज तक चला है। अगर स्त्री के हाथ से गलती हुई तो सारा समाज उसको देखता, पुरुष का है वो तो पुरुष ही है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये संयम के बिना हो नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चों पर उसका क्या असर पड़ता है। फिर ये सब जो रेप केसेस होती है, ये होती है, ये बढ़ती जा रही है, तो केवल उनका दोष है क्या? जो जिस तरह से हम बना रहे हैं, जिस तरह का साहित्य ला रहे हैं, उसमें से क्या निकलेगा? फिर अनियंत्रित वासना। तो देश नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं टिक सकता, समाज नहीं टिक सकता। तो इसको भी जवाब देता है। उसी के लिए ब्रह्मचारिणी बहनों का ब्रह्म विद्या मंदिर विनोबा जी ने रखा। ये भविष्य में ये जो भयंकर समस्याएं होती है, उसको भी ब्रह्मचर्य के आधार से ही आप रोक सकते हो। ब्रह्मचर्य को डबल पावर है आजकल। पहले कैसा था? ओनली स्पिरिचुअल पावर थी। नाउ स्पिरिचुअल एंड सोशल बोथ, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो उसको भी रोकना होगा। तो उसको भी संयम के आधार से रोकेंगे तो ठीक होगा। या आप जो कृत्रिम साधन और गोलियों के आधार से रोकेंगे तो उससे भी समाज जो है नीचे ही जाएगा। और आपको आने वाले नए जीव के लिए अगर आपके चित्त में आदर नहीं है तो काम नहीं चलेगा। पहले के जैसा था रशिया वगैरह में, फिर वो इंसेंटिव देते थे बच्चे के लिए, ज़्यादा बच्चे हैं तो इंसेंटिव देंगे। अभी भी शुरू कर दिया है कुछ देशों ने, इंसेंटिव देते। वो एक तरह का है। और ये दूसरा, बच्चे नहीं चाहिए, विषय वासना चाहिए, तो कैसे चलेगा? ये खत्म हो जाएगा। 5000 पहले कठोपनिषद जरयंती तेजः, उससे वर्णन किया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उसका तेज खत्म कर डालती है ये विषय वासना, इसलिए वो मुझे नहीं चाहिए। तेजस्विता कहाँ से है? हमारे जवान लोग बूढ़े होने लग गए हैं जल्दी से ही। क्यों? कि जो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शक्ति जो है वो जो है हमारा वीर्य है। और वो जब ऊर्ध्व होता है, अपने शास्त्र के ऊर्ध्व होता है, तो उसमें से तेजस्विता निर्माण होती है। और जिसकी अधोगति होती है वो समाज नीचे गिरता है। तो ये सारी चीजें जो है
आध्यात्मिक विषय हमको समझना पड़ेगा।